It is indeed a great privilege to come to the house of God and to listen to God's word. और बड़ी इज्जत की बात है कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि उसके घर में हम आकर उसके वचन को हम सुने। We thank God for God's servant Robert Roy who led us in the praise and worship today. और आज इबादत के समय जो है ब्रदर रॉबर्ट जो हमें वर्शिप में लीड किए उनको हम धन्यवाद कहते हैं। Continue to pray for him and the ministry he does. और जो उन सेवकाई करते हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं। And we pray that many will be saved and blessed through his ministry. और उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष मिले, ये हमारी आशा है, उम्मीद है। And today we're going to conclude that particular section of the teaching we were going through. और जो शिक्षा के बारे में हम पिछले कुछ हफ्ते से देख रहे हैं उसे हम आज समाप्त करेंगे। I don't know how many will listen today because the cake bake is going on outside. और मुझे नहीं पता कि कितने लोग सुनेंगे क्योंकि बाहर केक बेक चल रहा है। Some of you already had your cakes, but please leave one for me. Don't rush. कुछ लोगों ने केक खा लिया है, लेकिन मेरे लिए एक केक बचा कर। Thank you, young people, for the wonderful work you do. और नौजवान बच्चे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Somebody said, "Will there be any food in heaven?" और किसी ने ऐसा कहा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे कि वहां पर खाना पीना मिलेगा या नहीं। Some people think if there is nothing, angels' delight will be there. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर स्वर्गदूत और फरिश्ते ही रहेंगे। There was a kind of food available a few years ago. I don't know, it's still in the Tesco's or not. Angel Delight. Have you seen them? Yeah. और टेस्को में पहले एंजल डिलाइट बोलकर एक चीज मिलती थी। And we used to make some sweets for our children those days. और बच्चों के लिए हम उन दिनों में बनाते थे। Would you turn in your Bibles to the book of Revelation, please? और रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य में हमारा ध्यान हम देखेंगे। Look at chapter 20. और 20वें अध्याय में हम ध्यान देंगे। And look at verses 4 onwards. और उसके चौथे आयत से हम देखेंगे। We're going to continue the topic of resurrection. और यीशु मसीह का जी उठना, इसके बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे। John the Revelator says, "I saw thrones and they that sat on them, and judgment was committed to them." और यहाँ पर यूहन्ना ये लिखता है कि फिर मैंने एक सिंहासन देखा, उस पर लोग बैठे हुए थे और उन पर न्याय किया जा रहा था। Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God. और उसके बाद मैंने उन आत्माओं को देखा जिनका जो है यीशु के गवाही होने के कारण उनका जो सर कलम किया गया था। Who had not worshipped the beast or his image and had not received his mark or on their foreheads or on their hands. और जो वो लोग जो जिन्होंने अपने सर पर नहीं लिया था, ना ही उनकी वो पूजा की थी। And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. और वो यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक रहे। But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. लेकिन दूसरे जो मरे हुए थे वो 1000 साल जब तक खत्म नहीं हुआ वो मरे रहे। This is the first resurrection. और ये पहला जी उठना है। Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. धन्य और पवित्र है वो जो पहले पुनरुत्थान में भागी है। Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. और इस पर दूसरा मृत्यु उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता है और परमेश्वर मसीह के साथ 1000 साल तक वो राज करेंगे। For the last couple of weeks I've been talking about the second coming of Jesus. और पिछले कुछ हफ्ते से यीशु मसीह का पुनर्आगमन या वापस आने के बारे में हम बात कर रहे थे। And there are several things included when we call the second coming. और दूसरी वापस आगमन के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसमें कई सारे बातें आती हैं। The first thing is the rapture of the church. और पहली बात जो कलीसिया ऊपर उठाया जाएगा। And then the tribulation will begin. और वो सताए जाने का वो समय वो शुरुआत होगा। That's a time of unrestrained evil on the face of the earth. और इस दुनिया में बहुत दुख और दर्द होगा उस समय पर। At the end of that tribulation period, which is 7 years, we believe Christ and his church will come back to earth again. और वो 7 साल जो सताए जाने का समय है, उसके बाद यीशु मसीह अपने लोग या कलीसिया के साथ Then संसार the में आएगा। 1,000 year of reign we call the millennium starts. और उसके बाद 1000 साल का जो राज्य है वो समय है वो शुरू होगा। And that is to rule the world and to live on the face of the earth. और वो समय है इस संसार में, इस दुनिया में रहने का और इस दुनिया का राज करने का। Then the new heaven and the new earth begins. और उसके बाद नया जो है स्वर्ग और नया धरती होगा। And some of us are fed up with this old earth and this old environment. और पुराना जो धरती है, दुनिया है, इससे हम परेशान हो चुके हैं। But the new earth and the new heaven is coming. लेकिन नया स्वर्ग और नया धरती आने वाला है। So let's talk about what we did so far.
और हम देखेंगे इतना समय हमने क्या सीखा है, क्या शिक्षा पाई We है। talked about the certainty of the resurrection. हमने ये देखा कि यीशु मसीह का वापस आना या हमारा जी उठना ये पक्का होगा। About 5 main things I mentioned last time. और 5 खास बातों को हमने देखा पिछली बार। Then we talked about the intermediate state, what happens from the death until the resurrection of the person. और एक इंसान मरने के बाद जब जी उठता है उस दौरान उस बीच में क्या होता है इस बारे में And देखा। look at Job chapter 14 verse number 10. हम आयु के किताब में देखते हैं 14 अध्याय 10वें आयत It में। says, but man dies and is laid away, indeed he breathes his last, and where is he? और यहाँ पर लिखा गया है कि इंसान तो मर जाता है और वो दफन हो जाता है, उसके बाद उसकी सांस नहीं रहता Then है, you s- लेकिन वह कहाँ पर है? Then you see in the Old Testament there are mention about the Sheol, which is where the departed souls go. और यहाँ पर पुराने नियम में शियोल नाम का एक जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर जो मरे हुए लोग की आत्मा कहाँ पर जाती है। Then let's quickly go to the New Testament. उसके बाद नए नियम में हम देखेंगे Before the resurrection of Jesus Christ, और यीशु मसीह के जी उठने से पहले क्या हुआ and where did people go when they die? और उस समय से पहले जो लोग मरे हुए थे उनकी आत्मा कहाँ पर गई। And you see in Luke's Gospel chapter 16, 19 onwards, और लूका के खुशखबरी या किताब में हम देखते हैं 16 अध्याय 19 से 31 तक। Jesus clearly said the rich man and the Lazarus and their death, और वहां पर हम देखते हैं जो धनी इंसान और लाजरस जो है वो मर चुके थे and they both went to two different places. और वो दो दूसरे अलग जगह पर पहुंचे। And we see in Luke's Gospel 16, 19 onwards. और लूका के किताब में 16 19 से लेकर 31 में हम देखते हैं। Then the Hades, the Greek word Hades is mentioned there. और वहां पर उसके बाद हेडिस नाम का एक जगह के बारे में It's बताया in गया है। Acts chapter 2 verse number 27. और रसूलों की किताब में दूसरा अध्याय 27 आयत में लिखा गया है। The Bible says Jesus himself went into the Hades. और यहाँ पर लिखा गया यीशु मसीह खुद हेडिस नाम के इस जगह पर गया। But one big difference is that when Christ went to the Hades, he emptied the Hades. लेकिन एक खास बात यह है कि जब यीशु मसीह हेडिस में गया वो हेडिस की जगह उसने खाली कर दी। According to Revelation 1:18, now Jesus has the keys of death and hell. और प्रकाशित वाक्य Hallelujah. 1:18 में ऐसा लिखा गया कि यीशु मसीह के पास जो है मृत्यु और जीवन की कुंजी है। So when a person leaves the world, he or she is the spirit conscious at all. और इसका मतलब यह है कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी आत्मा या वो आत्मा या जो है इसके श्वास है There are वो many कॉन्शियस रहता है। there are many verses given there, उसमें कई सारे आयतें वहां पर लिखी गई है। starting with Isaiah 14:9-11. और आइज़िया की किताब में 14 अध्याय 9 से 11 में लिखा गया है। The dead, the departed ones are conscious. They know what's happening. और वो जो एक बार मर चुके थे वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। For example, the story of rich man and Lazarus. और लाजरस और वो धनी इंसान के बारे में हम The देखते rich हैं। man was in a place of torment, और वो धनी इंसान जहां पर सताए जाने के उस जगह पर था। and he was crying, praying to Father Abraham, please send Lazarus to give me some water. वो रो करो जो है अब्राहम पिता से रो कर कह रहा था कि मुझे कुछ पानी दो। But Lazarus was in a peaceful place. लेकिन लाजरस बहुत एक अच्छा या शांति वाली जगह So पर था। that shows that even after you die, your soul, your spirit are conscious of what's happening. तो इसका मतलब है कि एक इंसान मरने के बाद भी उनको समझ होती है कि क्या सही क्या और गलत क्या हो रहा And है। look at, there are 2 compartments of the Hades. और 2 कंपार्टमेंट या 2 जगह जो हेडिस का है वो देखेंगे। One is for the wicked and one is for the good ones. और एक जो बुरे लोगों के लिए और एक अच्छे लोगों के लिए। The one for the righteous and the other one for the unrighteous. और एक जो धर्मी लोगों के लिए और जो अधर्मी लोगों के And लिए। the righteous one will go to paradise. और जो धर्मी लोग हैं जो अच्छे लोग हैं पैराडाइस नाम की जगह पर But जाएंगे। those who rejected Christ, those who did not receive the salvation in Christ, they will go to a place of torment. और जो लोग जो यीशु मसीह को कबूल नहीं किए हैं वो प्लेस ऑफ टॉर्मेंट या सताए जाने वाले जगह पर There पहुंचेंगे। is no soul sleeping as some kind of churches teach. और कुछ लोग जिस तरह बताते हैं कि लोग सो जाते हैं ऐसा नहीं होता है। But after the resurrection of Christ, the story is different. लेकिन जो यीशु मसीह के जी उठने के बारे में कहानी बदल जाती है। Believers are not going into the paradise anymore. और जो है जो मसीही लोग हैं मरने के बाद पैराडाइस They नाम are की जगह पर नहीं going जाते into the presence of Jesus. और वो यीशु मसीह के हुजूरी में पहुंच जाते हैं। The thief on the cross, the repentant
one, he went to the और paradise. वो चोर जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने अपने मन को बदला। But Paul said, to depart from this body, this world, and to be present with Christ, that's what I desire. लेकिन पौलुस ने ये कहा कि जो इस दुनिया Hallelujah. से मैं जाकर यीशु मसीह के हुजूरी में पहुंच जाऊं, यही मैं चाहता Look हूं। at 2 Corinthians 5, 6 to 9. और दूसरी कुरिन्थियों 5 के अध्याय और 5 से 9 में ऐसा लिखा गया है, And Paul says, at home and with the Lord. और मैं अपने खुद के घर में खुदा यीशु मसीह के साथ। You are not home yet. Did you know that? आप जानते हैं कि आप अपने घर में नहीं पहुंचे। Some of you, when we buy our houses, when we settle down, we say, at last we are settled, we are in our own home. कुछ लोग जो घर खरीदने के बाद कहते हैं आखिर में हमें खुद का एक घर मिल चुका है। But I tell you, that is a temporary home. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये घर जो है कुछ समय के लिए But ही our है, permanent home is yet to come. लेकिन Hallelujah. हमेशा का जो घर है वो आना बाकी है। Oh, then we say, Paul himself said in Philippians 1:23, और फिलिपियों के खत में 1:23 में ऐसा लिखा गया है, he says, depart and be with Christ. और यहाँ पर मैं यहाँ से छोड़कर मैं यीशु मसीह या खुदा के साथ Revelation पहुंचूंगा। 6:9 to 11. और जो है प्रकाशित वाक्य 6:9 से 11 में ऐसा लिखा गया है, You read that souls of them that had been slain, they were also found in the presence of Christ. और जो यीशु मसीह के नाम में जिसका कत्ल किया गया था वो यीशु मसीह के पास पहुंच चुके Now, हैं। somebody tell me, where is paradise now? और कोई मुझे ये बताओ कि पैराडाइस नाम का वो जगह कहां पर है आज? There is a place in Queensland in Australia. It's called the Surfers Paradise. और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम है सर्फर्स पैराडाइस। Some people call certain places in our country, so that's और paradise. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जगह इतना सुंदर है कि इसको पैराडाइस नाम But I दे दो। tell you, paradise for believers is not here anymore. लेकिन मसीही लोग आपको याद दिलाता हूं कि पैराडाइस ये जगह इस दुनिया में नहीं It है। is now in the presence of Jesus. वो खुदा की हुजूरी में है, यीशु मसीह के साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Are you excited about paradise with Jesus now? क्या आप खुश हैं वो पैराडाइस जो यीशु मसीह के साथ रहने का Now, मिलता है? Christ at his resurrection and his ascension took with him those who are raised bodily. और यीशु मसीह अपने जी उठने के साथ जब पुनरुत्थान होने के बाद ऊपर जाने के समय जो जी उठे उनके साथ चले गए। And also all those who are dead in faith in Christ, their souls were also taken up. और जो यीशु मसीह पर जो भरोसा रखकर ईमान रखकर जो मरे हुए थे उनकी जान या उनका आत्मा भी यीशु मसीह के साथ चला गया। My question is, when you depart, do you know where you're going to go? मतलब ये है कि आप जानते हैं जब इस दुनिया से आप चले जाएंगे आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? Last week we talked about the resurrection of the dead. और जो मरे हुए लोग क्या जी उठने के बारे में हमने पिछले हफ्ते पढ़ाई की। It is purely a biblical doctrine. और ये सिर्फ बाइबल में हमें ये सिद्धांत या शिक्षा मिलती है। The Old Testament and New Testament speaks about the resurrection of people. और जो मरे हुए लोग का जी उठना के बारे में पुराने नियम और नए नियम में The दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। guarantee of the resurrection, number one, is that Jesus himself is risen from the dead. क्या कैसे हम जान सकते हैं कि सच में हम जी उठेंगे? उसका गारंटी ये है कि यीशु मसीह खुद मरकर जी उठा। Romans 8:11 is a very special scripture. और रोमियो के खत में 8:11 बहुत खास स्क्रिप्चर है, आयत है। And it clearly says that those who believed in Christ, even if they die, they will rise again with the power and the strength of the resurrection of Jesus और Christ. यीशु मसीह में जो ताकत हमें मिलता है वो जो मरे हुए लोगों में आकर जो उसके साथ जी उठेंगे। Then we talked about the nature of the resurrection. और हम देखेंगे कि जी उठने के बारे में उसमें क्या खास बातें हम सीख There are सकते हैं। three kinds of resurrection. और तीन प्रकार के जो है रिजरेक्शन या जी उठना है। One is called a judicial resurrection, और पहला जो है जुडिशियल, उसका मतलब है कि न्याय करने के बाद जी उठना। in which the believer has been raised with Christ already. और इसमें जो है मसीही लोग यीशु मसीह के साथ जी उठ चुके हैं। And then the second one is called a spiritual resurrection. और दूसरा ये है कि आत्मिक दौरान पर जो है आत्मिक आपका जी उठना। Remember the words of Jesus in John chapter 5:25 onwards. और यूहन्ना के किताब में 5:25 में ऐसा लिखा गया है। He said, those who will hear my voice, they will be risen from the dead. और वो ऐसा लिखा गया है कि जो मेरे आवाज को सुनेंगे वो मरकर वो जी उठेंगे। That is talking about not from the cover, but from a spiritual resurrection, dead in sin and transgression, and you will be risen in Christ. और वे कब्र में जाकर जी उठने के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जब पाप
पाप में आप मर चुके थे वहां से आपको जी उठना, ये बात सिखाता है। You know, those who are spiritually dead, they can drive the car, they can eat food, and they can drive even a plane, but they are spiritually dead. जो आत्मिक तौर पर मर चुके हैं, वो जो कुछ दुनिया में लोग करते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मिक तौर पर मर चुके हैं। But there is one more resurrection called the physical resurrection. लेकिन एक और है कि आपके बदन में, आपके शरीर में जी उठना। My friends, every one of us sitting here, if we die, we will be resurrected. भाइयों और बहनों, हर एक इंसान जो यहाँ पर बैठे हैं, जो मरने के बाद हम जी उठेंगे। Whether you are a Christian or a non-Christian, there is a resurrection waiting for you. और आप मसीही हो या नहीं हो, लेकिन आप मरने के बाद जी उठेंगे। And the scripture clearly teaches about that. और ये वचन हमें ये अच्छी तरह सिखाता है। Then the nature of the body of the believer we talked about, और जो मसीह के बारे में हमने देखा, it will be like the glorified body of Jesus. और हमने ये देखा मसीह इंसान जी उठने के बाद उनका बदन कैसा होगा, And there उनको एक नया बदन मिलेगा। Many scriptures, I'm not going to go in detail now. उसमें कई सारे आयत हैं, उतने समय नहीं है हमारे पास। But how about the body of the unbeliever? लेकिन हम उनके बारे में देखेंगे जो मसीही नहीं है, उनका क्या होता है। They will also be resurrected from the dead, और वो भी मरने के बाद जी उठेंगे, but they will not have a glorified body like Christians have. लेकिन उनको हमारे समान एक नया बदन जो खुदा ने दिया है, वो बदन नहीं मिलेगा। They need to be resurrected because they're going to be judged one day. और उनको जी उठना ये जरूरी है क्योंकि लिए उनका न्याय होना बाकी है। Look at Daniel chapter 12 verse number 2. और दानियल के किताब में 12 अध्याय दूसरे आयत में हम देखते हैं, Prophet Daniel said, और जो है नबी दानियल ने ऐसा कहा, some will awake from the dust to shame and everlasting contempt. और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, कुछ लोग जो है मिट्टी से जी उठेंगे ताकि उनका अनंत काल का That न्याय is होगा। talking about those who rejected the salvation in Jesus. और ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जो यीशु मसीह का दिया हुआ उद्धार है, उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। My friends, you are a blessed group of people. Did you know that? भाई और बहनों, आप धन्य हैं, आप आशीष पाए हुए लोग हैं, क्या आप जानते हैं? If you have accepted Christ as your Savior and Lord, अगर आपने यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में कबूल किया है, आपके मुक्तिदाता के there रूप में, is a great resurrection waiting for you. आपके लिए जी उठना आपके लिए बाकी है। Not like the resurrection of the wicked ones. और वो दूसरे या अधर्मी लोगों के हिसाब से नहीं। I'm not going to be resurrected for shame, no. और हमें जो है शर्म के लिए जी उठाया नहीं जाएगा। If I die, I will be resurrected with the glory of Christ in my body. और New जब body. मैं मरूंगा, मैं जब जी उठूंगा, एक नया बदन जो स्वर्ग से मुझे मिलता है वो मैं पाऊंगा। Then they look at the last one, Revelation 20, 12 and 13 we read today. और जो है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12-13 आज जो हम पढ़े हैं, That the resurrection of the wicked ones, और जो अधर्मी लोगों का जी उठने के बारे में हमने देखा, they will be risen to be judged by God और वो जी उठेंगे ताकि उनका न्याय हो, and to be thrown into the lake of fire. और वो झील जो आग से भरी हुई है उस झील में डाला जाने के लिए। Have you seen any lakes? Let me see the hands of those who seen any कितने लोगों lakes. ने झील देखा है, लेक को देखा है? Everybody is scared. I'm not talking about the lake of fire. मैं आग के झील के बारे में नहीं बोल रहा, I'm talking about the lake with water, please. और मैं वो झील जिसमें आप पानी देखते हैं, कितने लोगों ने ऐसा झील देखा है, Now, रिवर now देखा you're है? waking up. Oh, you're breathing. It's not the lake of fire. It's the lake of water. Yes. पानी का झील के बारे में बोल रहा हूँ। Can you imagine a big lake? क्या आप सोच सकते हैं एक बड़ा तालाब या बड़ा सा लेक, It is going to be full of fire and brimstone. और उसमें जो है आग ही आग आप देख पाएंगे, And some people are going to go into there. और उस झील में, उस तालाब में कुछ लोग जाएंगे, Not for a holiday, और वहां पर आराम या सुखदायक not for समय के few लिए नहीं, days, not for few days, और कुछ दिनों के लिए नहीं, but eternally they're going to be in the lake of fire. उस आग के झील में हमेशा के लिए उस आग में वो रहेंगे। Could be your neighbors, हो सकते हैं आपके पड़ोसी, could be your unsaved husband, हो सकता है आपका पति जो यीशु को कबूल नहीं किया है, could be your unsaved wife, हो सकता है आपकी पत्नी जो यीशु को कबूल नहीं could be किया your है, rebellious children, हो सकते हैं आपके बच्चे जो आपसे विरोध करते हैं, could be someone in your distant family members. और हो सकते हैं आपके परिवार या आपके रिश्तेदार के कुछ लोग। By the way, the lake is not prepared for human beings originally. और आपको पहले बताता हूं कि लोगों के लिए ये झील पहले नहीं बनाई गई। Jesus said the lake of fire was prepared originally for Satan and his angels. और यीशु मसीह ये बताता है कि ये झील जो आग से भरी है, ये शैतान और उसके फरिश्तों के लिए A था। merciful God would never create a lake of fire for human beings. और रहम से
से भरा दयालु खुदा ऐसा एक झील हमारे लोग के लिए नहीं बनाएगा. But some people deliberately choose not to accept Jesus and they will choose to go into the lake of fire. लेकिन कुछ लोग जानबूझकर यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि वो झील में वो पहुंच जाए. Let's go quickly, the time of the resurrection. लेकिन हम देखेंगे वो समय जब जी उठने का आएगा. The resurrection of the righteous. और वो धर्मी लोगों का जी उठना. And we call in John 6:39 and 40 and 44. और यूहन्ना के किताब में 6वां अध्याय 39 में हम देखते हैं. Jesus said about the last day. और यीशु मसीह आखिरी दिन के बारे में बोलता है. It is not referring to one day, by the way. और वो एक दिन के बारे में नहीं बोल रहा. It is talking about a period of time in a season of time, rather. और यहाँ पर एक समय, एक मौसम या एक समय, एक लंबे समय के बारे में बोल रहा है. It could be long or it could be short. वो लंबा या कम हो सकता है. So in that time, resurrections will take place. और वो समय, उस दौरान जो है मरे हुए लोग जी उठेंगे. Look at 1 Corinthians 15:23. पहले कुरिन्थियों 15:23 में ऐसा लिखा गया है. 1 Thessalonians 4:14 to 17. पहले थिस्सलुनीय 4:14 से 17 में ऐसा लिखा गया The है. resurrection of the believer is connected with the coming of Christ. और जो मसीह लोगों का जी उठना यीशु मसीह के वापस आने के साथ मिलकर होगा. I want to hear an amen for that. क्या आप उसके लिए आमेन कह सकते हैं? The resurrection of all those who are dead in Christ, whichever cemetery they are, whether their bodies are available or not, they will hear the voice of the sound of the trumpet and they will be resurrected when Christ comes. और मसीही लोग जो मर चुके हैं उनका बदन इस दुनिया में है या नहीं उससे फर्क नहीं होता है. जब यीशु मसीह वापस आएगा और जब तुरही का आवाज वो सुनेंगे, वो नए बदन के साथ जी उठेंगे. Some people say, what happened those who are eaten by wild animals? और कुछ लोग ऐसे पूछेंगे क्या होगा उन लोगों का जो उनका बदन है ही नहीं, जो जानवरों ने खा लिया है. Hundreds of Christians were thrown to lions in the first century by Roman emperors. अब पहले शताब्दी में बहुत सारे मसीही लोगों ने जो है रोमी अधिकारी के नीचे जानवरों को खिला दिया गया I था. saw a picture of Christians being burned alive in Nigeria last week. और पिछले हफ्ते में नाइजीरिया में कुछ मसीही लोगों को जो है जिंदा जलाया जाता है, ऐसे तस्वीरों को मैंने देखा. And the charred bodies are lying all over. और वहां पर जले हुए बदन शरीर वहां पर पड़े हुए हैं. Just because they follow Jesus. सिर्फ इसलिए कि वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हुए. But I tell you that burned bodies will have a resurrection. That will be a glorious body one day. लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि वो जले हुए बदन, वो शरीर में एक नया बदन उनको मिलेगा. Many Christians are executed in many parts of the world. दुनिया के कई सारे जगहों पर कई सारे मसीह लोग का सर कलम किया या काटा Some of जाता their है. bodies are thrown to animals and birds and to fish. और कई सारे लोग का जो है बदन जो है जानवरों को या मछलियों को या पंछियों को दे देते But I हैं. tell you, wherever their parts of the body has gone, और उनके शरीर के हर अंग यहाँ या वहाँ तितर बितर हो चुके when the होंगे. trumpet shall sound, लेकिन जब वो तुरही फूकी जाएगी, when Jesus comes in the glory, और जब यीशु मसीह उस महिमा के साथ वापस every आएगा, dead in Christ will rise first. हर एक इंसान जो यीशु मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे पहले. No matter where they are, वो यहाँ पर कहीं पर भी क्यों ना they हो, will hear the sound of the trumpet from heaven. वो स्वर्ग से वो तुरही का आवाज वो सुनेंगे. They will be resurrected in the twinkling of an eye. और वो आँख झपकते समय में ही वो जी उठेंगे. So that time, when is it, you're asking? और आप पूछेंगे वो समय कब आएगा. I wish it was today. और मैं सोचता हूँ आज वो दिन होता तो कितना अच्छा. There's a cemetery not far from us. और हमारे से ज्यादा दूर नहीं है वो कब्र, वो सेमेट्री यहाँ से ज्यादा दूर Some नहीं of our uncles and aunties are lying there. है. और हमारे कलीसिया के कुछ अंकल से आंटी वहाँ पर सो रहे हैं. They will hear the sound of the trumpet. और वो तुरही की आवाज वो सुनेंगे. There are some of the cemeteries we have buried our men and our women. और हमारे आसपास के हमारे भाई बहनों के कुछ लोगों का शरीर वहाँ पर आज भी And in है. the funeral service, we never say goodbye. हम फ्यूनरल की वो सर्विस है, वो मिनिस्ट्री है, उसमें हम गुड बाय उसे नहीं कहते हैं, अलविदा नहीं कहते हैं. We have to say good night. हर में आप कहते हैं कि अच्छी नींद में आप सो जाओ, Sleep well. अच्छे से सो जाओ. Or when you wake up, लेकिन ये समय आएगा जब आप उठेंगे we will be there as well. और हम आपके साथ रहेंगे. All the dead will wake up one और day. हर एक जो यीशु मसीह में मरे हैं वो The जी dead उठेंगे. in Christ will wake up one day. और यीशु मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे. एक समय आएगा. And I'm excited about that time. और वो समय के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. But I don't know the time. लेकिन मुझे वो समय नहीं पता. But I know it will happen. अब लेकिन ये पता है कि वो जरूर होगा. Hold on until then. और इसलिए आप तैयारी के साथ बैठे. If you miss your loved ones, और आपके जो बहुत
प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग Don't उसे worry, मिस करते हैं। don't worry, it won't be too long. वो ज्यादा समय दूर नहीं है। When Brother Chandra was, we had the farewell, that was the last brother we said bye in our church. और ब्रदर चंद्रा जो कलीसिया में आखिरी बार उनको हमने गुड बाय कहा, We're saying we shall meet again. और हमने ये कहा लेकिन आपको हम फिर वापस मिलेंगे, And that joy fills our hearts. और वो खुशी हमारे दिल को भर देता है। Think of your own loved ones. और आपके करीबी लोगों के बारे में सोचो, If they died in Christ, अगर वो यीशु मसीह में अगर वो सो जाते हैं, मर जाते हैं, don't have any more prayers for them. उनके लिए बहुत दुआ करने की जरूरत नहीं है, Don't worry about them. उनके बारे में चिंता करने की जरूरत Don't नहीं है, disturb their peaceful time with और Jesus. उनका जो अच्छा समय वो जो बिता रहे हैं उसके लिए उनको डिस्टर्ब मत They करो, will be resurrected. वो जी उठेंगे। Then how about the resurrection of the wicked ones? लेकिन उन लोगों के बारे में जो अधर्मी लोग हैं उनका क्या होगा? John 5:28-29 tells और us यूहन्ना 5:28-29 में ऐसा लिखा गया है, that they will be resurrected after 1,000 years. और वो लोग जो 1000 साल का जो वो समय खत्म होगा उसके बाद जी उठेंगे, And that will be connected not with the resurrected life, but for a judgment and to be thrown into the lake of fire. और वो नए जीवन पाने के लिए, नई जिंदगी पाने के लिए जी नहीं उठेंगे, लेकिन न्याय के लिए उसके बाद वो उस झील में जो आग का झील है वहां पर फेंका What is जाएगा। his first resurrection as you see here? हम यहाँ पर देखते हैं पहला पुनरुत्थान या पहला जी उठना क्या है, Revelation 24-6 we read that. और जो है प्रकाशित वाक्य 20:4-6 में हम देखते हैं, And this identifies those involved as blessed and holy. और ये वो लोग हैं जो आशीष पाए हुए हैं, वो पवित्र और पाक लोग हैं। And second death, which is a lake of fire, और दूसरा मौत जो आग के झील के बारे में that कहता has है, no power on those who go into the first resurrection. और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, जो पहले जो जी उठने में जो लोग आए उनके ऊपर कोई अधिकार उनके पास नहीं Would you है। like to be in the first resurrection or the second one? आपके पास ये किस पुनरुत्थान में आप जी उठना चाहेंगे? Everybody wants to be in the first one. Am I सब right? लोग चाहते हैं कि पहले पुनरुत्थान या पहली बार जी उठने में आप शामिल हो, But I heard some people say, you Pentecostals go for the first one. और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पेंटिकॉस्टल लोग हैं, आप पहले बार निकल जाओ। We Catholics, Methodists, we will go the second time. हम कैथोलिक से, हम मेथोडिक से, हम दूसरी बार में निकल जाएंगे। I tell you, there is no first and second for Christians. और मैं आपको बताता हूं कि मसीह लोग के लिए पहला या दूसरा नहीं है। Ready or not, he is coming. आप तैयार हो या नहीं हो, आप वो वापस आने वाला Better है। be in the first resurrection. आप तैयार हो जाओ कि पहले जी उठने में आप रहो। All the believers in Christ who died in Christ, they will be honored by the first resurrection. और जो मसीही लोग जो यीशु Glory मसीह में to मर God. चुके हैं, उनको वो आदर पहले जी उठने में मिलेंगे। It takes place in various stages. और कई सारे स्टेजेस में वो पूरा होगा। Jesus Christ himself is the first of the first. और सबसे पहला जो यीशु मसीह सबसे पहला पहलोटा है। We see the resurrection of the righteous, the first resurrection, Jesus and all the saints of God. और पहले जी उठने में यीशु मसीह और जो धर्मी लोग हैं, जो यीशु मसीह के साथ But you- जो है वो लोग जी उठेंगे। If you look at number 2 there, the resurrection of the Jerusalem saints. और दूसरे बारे में हम देखते हैं कि नंबर 2 में वहां पर देखते हैं You यरूशलेम know- के धर्मी लोग। When the tomb of Jesus was broke open, और जब यीशु मसीह का कब्र खुल गया था, somebody else wanted to accompany him. और कुछ दूसरा एक इंसान था जिसे वो उसके साथ उसको जाना था। Matthew writes, several cupboards, several tombs were open. और मत्ती ऐसा लिखता है कि कई सारे कब्र उस समय पर खुल चुके थे। If you were in Jerusalem, you could have seen those sights. अगर आप यरूशलेम में रहते तो आप देखे होंगे कि देख पाते थे। They died in faith in the Lord. और वो यीशु मसीह में विश्वास रख कर मरे थे। But their bodies came up to the grave, लेकिन उनका जो बदन है वो कब्र से निकला, but they were not taken to heaven until and unless Christ is gone first. और जब तक यीशु मसीह नहीं Hallelujah. जाए उनका बदन स्वर्ग में नहीं जाता। I believe in the preeminence of Jesus Christ in everything. और मैं चाहता हूँ, जानता हूँ कि यीशु मसीह सबसे पहला और सबसे आगे Oh, होता है। in death he is number one. In resurrection also he is number one. वो मृत्यु में सबसे पहला है और जी उठने में भी सबसे पहला है। And all those who belong to Christ will also have the first और resurrection. जो कोई इंसान जो यीशु मसीह के साथ रहेंगे वो यीशु मसीह के साथ जी Then उठेंगे। the third stage is the resurrection of the dead in Christ. That is after
the resurrection of और Jesus. यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो यीशु मसीह में मर चुके हैं उनका क्या होगा? You and I, we are in that section. और आप और हम उस भाग में आते हैं, उस हिस्से में आते हैं। Provided if you are dead or if I am dead. अगर हम मर चुके होते तो क्या होता? But if you are alive, लेकिन आप अगर जिंदा है, something else happened to us as believers. What happens to us? मसीही लोग रहेंगे तो उनका क्या होगा? Yeah? We will be transformed, we'll be raptured with Christ. और हमें एक नया बदन मिलकर यीशु मसीह के साथ ऊपर चले जाएंगे। Then the fourth one is resurrection of the martyrs at the end of the tribulation. और जो 7 साल के सताए जाने के बाद जो ऐसे मसीही लोग जिनका सर कलम या जो मर गए थे, They also become part of the first resurrection. और वो भी पहले जी उठने के साथ भागी रहेंगे। A lot of people are there for the first बहुत resurrection. सारे लोग रहेंगे पहले जी उठने में। Christ number one, यीशु मसीह सबसे पहला, Jerusalem saints number two, यरूशलेम के धर्मी लोग all दूसरे, the dead in Christ, जो मरे हुए हैं यीशु मसीह में, and those who are going to be killed in the tribulation time. और वो लोग जो 7 साल के सताए जाने में जो समय में मारे जाएंगे। There is great hope for Christian at any time. और बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है वो हर कोई मसीही। Hallelujah! हालेलुया। There is hope for a believer in Jesus. और जो यीशु मसीह में जो ईमान रखते हैं उनको उम्मीद है। Let's wrap up resurrection of the wicked one. और जो धर्मी अधर्मी लोगों का क्या होता है, We don't need to know about that, do we? उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। That's not talking about us. वो हमारे बारे में नहीं है, But you can tell somebody else. लेकिन ये आप दूसरे किसी से शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। Don't think you can escape from the resurrection and the judgment. और आप ये कह सकते हैं कि आपके पास बच निकलने का कोई मौका नहीं If है। you die as a non-believer in Christ, अगर आप यीशु मसीह को कबूल किए बिना ही मर जाते हैं, you will be resurrected आप जरूर जी उठेंगे। after 1,000 years. वो 1000 साल के समय के बाद It is connected with judgment. वो न्याय के साथ होगा। It takes place at the close of the day of the Lord. और यीशु मसीह के उस दिन में वो पूरा होगा। 1,000 years, I said. 1000 साल के बारे में मैंने जो बताया था। Let's talk about the judgment just briefly. और जो न्याय का समय है उसके बारे में जरा ध्यान देंगे। I'll have one more session next time. और अगले बार में एक और सेशन But I just give you a taste of the judgment today. लेकिन आपको न्याय के बारे में कुछ बातों को बताना And you're चाहूंगा। saying, are we going to be judged again? क्या आप पूछेंगे कि हमारा न्याय फिर होगा? Well, let's look what the Bible says. बाइबल क्या कहता है? In the Old Testament, Psalm 96:13, और जो है पुराने नियम में साम्स जबूर 96 के 13 अध्याय में it आयत में ऐसा says, लिखा गया है। it says, for he is coming, ऐसा लिखा गया है कि वो वापस आने वाला है। talking about God, और यीशु खुदा के बारे में बताता he है। is coming to judge the earth. वो दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा। He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. और जो सच्चाई के साथ धार्मिकता के साथ लोगों का न्याय वो करेगा। And the New Testament, और नए नियम में Acts 17:31, रसूल की किताब में 17 अध्याय 31 आयत में Hebrews लिखा गया है। 9:27, इब्रानी की किताब 9 के 27 it में ऐसा लिखा is गया है। appointed for man once to die and then the judgment. और इंसान के लिए ये लिखा गया है कि वो एक बार मरेगा, उसके बाद उसका न्याय होगा। That means Christians and non-Christians. इसका मतलब है कि मसीही और जो मसीही नहीं है, Everyone will have to stand before God. और हर एक इंसान को खुदा के सामने न्याय के समय पर खड़ा होना होगा। The conscience of all mankind bear witness of a certainty of the judgment. और जो न्याय होने वाला है उस समय के बारे में हर एक इंसान के जहन में अंदर उनको वो समझ होती Whether है। you believe the Bible or not, आप बाइबल में भरोसा करें या नहीं, whether you're Christian or not, आप मसीही हो या नहीं, deep inside there's a conscience says, one day I have to stand before somebody. और आपके दिल के अंदर एक बात ऐसे निकलेगी जो कहेगा कि एक समय आएगा जो खुदा के सामने मुझे खड़ा होना होगा। Not before the policeman, पुलिस के सामने नहीं, not before the judge of this world. इस दुनिया के न्यायिक हिरासत में नहीं। One day I have to give an account of all that I've done to someone super. और एक समय आएगा जब मुझे जो कुछ मैंने इस दुनिया में किया है उसका मुझे जो है सही हिसाब देना होगा। Solomon said in Ecclesiastes chapter 11 verse 9. और सोलोमन ने ऐसा कहा, And also in chapter 12 verse number 14. उसके 11 अध्याय और 12 अध्याय इक्लेसियास्टिक्स में ऐसा लिखा गया है, That there is a judgment coming. और एक न्याय का समय बहुत जल्द आ रहा है। The proof of it, Acts 17:31. और जो है रसूलों की किताब में 17 अध्याय 31 में ऐसा लिखा गया है, The resurrection of Jesus. यीशु मसीह का जी उठना। That is God's proof और वो यीशु मसीह का हमारे लिए एक प्रूफ है। that everyone will be judged one day. वो ये बताता है कि हर एक इंसान का न्याय होगा।
I have no time to continue, but I will continue this next time. और समय आगे नहीं बचा है, लेकिन ये अगली बार मैं ये सिखाऊंगा। But I give you these scriptures and I close. और ये आयतों को मैं आपको देकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। Look at these verses, John 5, 22, 23, 27. और यूहन्ना 5, 22, 23 और 27 को हम देखेंगे। Why Jesus is the judge? और ये कारण क्या है कि यीशु मसीह न्याय के लिए खड़ा होगा? Because he is a son of man. वो इंसान का बेटा है, इसलिए वो न्याय करेगा। He earned the right to judge me and judge you because he become just like you and me. उसको वो अधिकार मिल चुका है कि इंसान का वो न्याय कर सकता है, इसलिए क्योंकि हमारे समान वो बन चुका था। 2 Timothy chapter 4 verse number 1. और दूसरी तिमुथी के किताब में 4 अध्याय पहले आयत में हम देखते हैं। It says the Lord Jesus Christ who will judge the living and the dead. और यीशु मसीह हमारा मालिक जो जिंदा है, जो मर चुके हैं, उन सभी का वो न्याय करेगा। I want all of us to read together the next verse. और अगला आयत जो है हम साथ में पढ़ेंगे। It's 2 Corinthians 5:10. और दूसरे कुरिन्थियों के खत में 5, Here we 10 go. में ऐसा लिखा गया 1, 2 and 3. Can you read? हम साथ में पढ़ेंगे। हम उसके साथ जाहिर होंगे और यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के पास। We must all stand before the judgment seat of Christ. और यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हर एक इंसान को न्याय के लिए खड़ा होना होगा। I'll explain more about that next time. और इसके बारे में मैं और शिक्षा अगली बार दूंगा। But look at Acts chapter 10 verse 42. लेकिन रसूलों की किताब में 10:42 में ऐसा लिखा गया है। Christ was ordained by God to be judge of the living and the dead. और खुदा ने यीशु मसीह को नियमित किया गया था कि इंसान का वो न्याय कर पाए। And I'll talk about this one next time. और इसके बारे में मैं अगली बार में सिखाऊंगा। The nature of the judgment, वो न्याय का समय कैसा होगा, the 5 future judgments, और आगे का 5 जो न्याय कैसा होगा, and all those things I'll talk about next time. और ये सारी बातें मैं अगली बार सिखाऊंगा। The whole set is available for you in CDs. और ये जो शिक्षा है, सिद्धांत है, ये पढ़ाई है, With the इस सीरीज notes, में पढ़ाई। with the notes, Pastor Royce will make it available for you. और ये नोट्स के साथ आप जो है पास्टर रॉय से पा सकते हैं। So you can go home and read and study again. आप घर जाकर इसे पढ़े, सीखे और लिखे। But as we close this message and this service today, और ये मैसेज हम यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। be affirmed one more time. लेकिन एक और बार आप याद रखो, If you die in Christ, अगर आप यीशु मसीह में आप अगर मर जाते हो, you will rise in Christ. वो यीशु मसीह में आप जी उठेंगे, No doubt about it. उसके लिए कोई शक नहीं है। Satan cannot stop your resurrection. और शैतान आपके जी उठने को रोक नहीं सकता। He tried at the time of the Moses' resurrection. और मूसा के जी उठने के समय ने शैतान ने कोशिश की। And the angel said, God rebuke you. और लेकिन फरिश्तों ने ये कहा कि खुदा आपको डांटता है। No one will stop your resurrection. और कोई आपके जी उठने को रोक नहीं सकता है। But I don't want you to die. लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मरे। You don't want me to die. आप नहीं चाहते कि मैं मरूं। You know, our first option always is transformation and going to heaven in the rapture. Am I right? हम ये सब चाहते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा उसके साथ हम रैप्चर या उसके साथ उठाए जाए। I see a lot of smile in the church. बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। Pastor, pray that the rapture will come और quick. पास्टर दुआ करो कि रैप्चर बहुत जल्द हो जाए। But pastor's prayer will not help. लेकिन पास्टर का दुआ ये फायदा नहीं होगा। He has designed everything in his book. और उसके कलाम में, उसकी किताब में उसने समय लिख रखा है। But we have to live until then. लेकिन उसके लिए उस समय के लिए हमें रुकना होगा। I received this from David Jeremiah. I must read it for you. और डेविड जेरेमाया से मैंने ये मिला और ये आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। What do we do until then? और उस समय तक हम क्या करना है, हमें क्या करना है? 5 things. 5 चीजों को हम देखेंगे। Number 1, पहली बात, walk submissively. जो हलीम होकर जो है दीनता के साथ आपकी चाल को रखो। Worship triumphantly. आप जो है कामयाबी के साथ उसका इबादत करो, उसकी वर्शिप करो। Witness urgently. आप बहुत जल्द हो सकता है, जितना जल्द हो सकता है दूसरे लोगों से आप गवाही बनो। Work fervently. और बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। And watch expectantly. और जो यीशु मसीह के आने का समय के लिए बहुत इंतजारी के साथ बैठो। We heard a wonderful testimony in the morning service. सुबह के जो है सर्विस में हमने बहुत अच्छी गवाही सुनी। Our evangelism team went to Hounslow High Street to evangelize. और इवेंजलिज्म टीम जो है हाउसलो हाई स्ट्रीट में गए थे। Usually Muslims come to debate and fight against you. और बहुत सारे मुस्लिम लोग आपके खिलाफ जो है विवाद करने के लिए आते हैं। But Brother Jack and Brother Stanley said a Muslim Somalian lady walked to the desk. और वहां पर ब्रदर जैक और ब्रदर स्टैनली ने ये बताया कि एक मुस्लिम सोमाली औरत उस डेस्क के पास आई। She said there is no peace in Islam. और उसने ये कहा कि इस्लाम में मुझे कोई शांति या आराम नहीं है। I am fed up with Islam, she said. मैं बहुत परेशान हूँ इस्लाम से।
She was wearing her parda or whatever she was wearing. और जो अपने आँख नकाब डालकर अपनी आंखों को बंद किया था, But she had a conversation with our evangelistic team. लेकिन हमारी इवेंजलिज्म टीम से उसने बात की And she accepted Christ as a Lord and Savior. और उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया। I've been praying for Somalians to be saved. और हम Hallelujah. दुआ करते हैं कि सोमाली लोग को नई जिंदगी मिले। And she said, take my name and address, but keep it secret. और उसने ये कहा कि मेरा एड्रेस और ये नाम सब पता ले लो, लेकिन ये आप गुप्त रखो। As you know, if Muslims find out, she will be killed. आप जानते हैं मुस्लिम लोग अगर जाने तो ये उसे मार सकते हैं। Our team is contacting her and they're trying to give the best advice to her. और जो है सही हिदायत हमारी टीम उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। We must witness urgently और हमें बहुत जरूरी है कि हम दूसरे लोगों को गवाही अपनी दे, so that many can be raptured and transformed. ताकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ नई जिंदगी पाए। I pray the Lord will help you to live a holy and a sanctified life. और मैं चाहता हूं और दुआ करता हूं कि आपको एक पाक जिंदगी आप जिंदगी बिताने के लिए खुदा आपको आशीष दे। Any of your members of your family are not believers, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो यीशु को कबूल नहीं किया है, tell them the lake is bubbling with fire. और उनको ये कहो कि वो झील तैयार है जो आग से भरी है। Your love here will end when they leave this world, आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, इस दुनिया में खत्म हो but जाएगा, the lake is waiting for them. लेकिन वो झील तैयार है। But the only option is come to Jesus. और सिर्फ आपके पास एक रास्ता है कि यीशु मसीह He के will पास आओ। save you. वो Hallelujah. आपको बचाएगा, He will give you eternal life. आपको हमेशा की जिंदगी वो He आपको will देगा। give you permanent house in heaven. वो आपको हमेशा का वो घर आपके लिए स्वर्ग या And आसमान में Satan देगा। cannot stop your resurrection और शैतान आपके जी उठने को रोक नहीं सकता, because we are more than conquerors. इसलिए कि उन्हें हमें कामयाबी पाई है। Let's stand together हम now. साथ में खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus.